حیدرآباد میں علماء و مشائقین پر مشتمل ایک وفد نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ شیودھر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے مقدس مقامات کا تحفظ کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ علماء اکرام و مشائخ اعظام کے ایک وفد نے چہارشنبے کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ شیودھر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ 15 جنوری کو پرانا پل دروازے پر واقع چلہ حضرت محبوب سبحانی اور مزارات پر چند شر پسندوں نے حملہ کر دیا۔ اس طرح کی حرکتیں حیدرآباد کی ہم آہنگی اور امن کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ علماء و مشائقین نے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور تمام عبادت گاہوں خاص طور پر 400 سالہ درگاہ حضرت موسیٰ قادری کے تحفظ کی اپیل کی۔ وفد میں مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین کلہ، مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی قادری وقار پاشا، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری موسوی، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا سید محمد علی قادری ہاشمی، مولانا سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی علی پاشا، مولانا سید سیف اللہ حسینی قادری الباقری سیف پاشا، مولانا قاضی سید شاہ نور الاصفیاء روحی اعظمی، مولانا ڈاکٹر خواجہ شاہ محمد شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، مولانا محمد فرید الدین زاہد، مولانا محمد محی الدین احمد حسامی، مولانا سید واصف عالم قادری و دیگر شامل تھے۔ میگا اسٹار چرنجیوی نے ورلڈ اکنامک فورم سمٹ ڈاووس میں شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں منعقد ورلڈ اکنامک فورم سالانہ اجلاس 2026 میں شرکت کی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ کو یہ علم ہوا کہ میگا اسٹار چرنجیوی بھی زورخ میں ہے اور ریونت ریڈی نے چرنجیوی کو سمٹ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی دعوت پر اداکار چرنجیوی نے بھی ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور عالمی پلیٹ فارم پر تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن ڈاکیومنٹ کی رونمائی اور پیشکش کا مشاہدہ کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور میگا اسٹار چرنجیوی کے درمیان گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے چرنجیوی کو بتایا کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ چرنجیوی کی مناشنکر ورپرساد گارو فلم دیکھی ہے اور اس سے بھرپور لطف اٹھایا ہے۔ ریونت ریڈی نے فلم کی تفریحی اہمیت کو سراہا اور میگا اسٹار چرنجیوی کی تعریف کی۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے محکمہ اقلیتی بہبود کے افسران کا ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اقلیتوں کی فلاحی اسکیمات، ماہ رمضان کی تیاریوں و دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کی صدارت میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود کے علاوہ محکمے کے افسران نے شرکت کی۔ اس دوران وزیر محمد اظہر الدین نے رمضان کی تیاریوں اور جاری منصوبوں کی پیش رفت، قبرستان کی اراضیات کے مسائل، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی فلاحی اسکیمات و دیگر امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کے عہدیداران سے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسرز کو محکمے کی اسکیمات کو نافذ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، ٹمریز کے چیئرمین فہیم قریشی کے علاوہ مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین طارق انصاری و دیگر نے بھی شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بھارت فیوچر سٹی کو عالمی معیار کے شہر کے طور پر تیار کرنے کے لیے تلنگانہ کے ساتھ شراکت داری کے لیے آمد کی ظاہر کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ڈاووس میں منعقد ورلڈ اکنامک فورم 2026 میں شرکت کر رہے ہیں۔ یو اے ای کے وزیر برائے اقتصادیات و سیاحت عبداللہ بن توخ المری نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے بھارت فیوچر سٹی کو عالمی معیار کے عالمی شہر کے طور پر تیار کرنے کے لیے تلنگانہ کے ساتھ شراکت داری کے لیے آمد کی ظاہر کی ہے۔ اس دوران اسٹریٹجک کولیبریشن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں قائدین نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دینے کی تجویز پر بھی غور و خوض کیا ہے۔
मुंबई के सियालदा रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में सीट के लिए झगड़ा होने के बाद एक नौजवान खातून ने काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जराये ने बताया कि मुंबई के सियालदा रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में सवार होने के बाद एक नौजवान खातून का दूसरी खातून से सीट को लेकर झगड़ा हुआ। जब उसे नशिस्त न मिली तो उसने अपनी पास मौजूद काली मिर्च का स्प्रे निकाला और दूसरी खातून के चेहरे पर छिड़कने की कोशिश की। जब खातून ने मुदाखलत की तो वो इंतहाई गुस्से में आ गई और उसने ट्रेन के पूरे डब्बे में काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। परेशान मुसाफिरों ने नौजवान खातून की पिटाई कर उससे सबक सिखाया, बादअज़ा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए बगैर इंतखाबात मुनक्किद करवा रही है तो बीआरएस पार्टी क्यों खामोश है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम न करने पर नुक्ताचीनी की और बीआरएस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा है कि जब कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए बगैर इंतखाबात मुनक्किद करवा रही है तो बीआरएस पार्टी क्यों खामोश है। उन्होंने कहा कि जागृति का एक ही एजेंडा है और वो तेलंगाना के पसमानदा तबकात के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन अफराद का एहतराम करें जिन्होंने तेलंगाना को उसकी शिनाख्त दिलाने के लिए और रियासत के मफादात के लिए काम किया है। उन्होंने एम सत्यनारायण को याद करते हुए कहा कि वो नौजवानों के लिए तहरीक हैं और उनके टैगमेंट पर मुजस्सिमे लगाए जाने चाहिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार सहर शेख ने मुमरा सीट जीतने के बाद कहा कि नताइज तवक्को के ऐन मुताबिक आए हैं और वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार सहर शेख ने मुमरा सीट से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन का ख्याल था कि वो हार जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। सहर शेख ने कहा कि मुखालिफिन ये समझ रहे थे कि एआईएमआईएम का सफाया हो जाएगा, लेकिन एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने मंसूबाबंदी के मुताबिक ही अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और फिर नाकाबिल यकीन की हद तक खुशकुन नताइज बरामद हुए। उनका कहना था कि नताइज ऐन तवक्को के मुताबिक आए हैं और वो मुमरा सीट से कामयाबी हासिल करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। उन्होंने उन्हें वोट देने वाले राय दहिंदों से भी इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने सिकंदराबाद जोन में नौ तामीर शुदा कवाड़ीगुड़ा और मुशीराबाद सर्कल का इफ्तिताह अंजाम दिया। सिकंदराबाद जोन में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की तखमीना लागत से कवाड़ीगुड़ा और मुशीराबाद सर्कल दफ्तर कायम किए गए हैं। इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चारशंबे को दफ्तरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि नए दफातर शहरी खिदमात को शहरियों के लिए मजीद काबिल रसाई बनाने का काम करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी, एमएलए मुता गोपाल के अलावा जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन व दीगर ने शिरकत की। मजहबी उमूर के सदर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हरम के इमाम और मौज़िनीन से मुलाकात करते हुए माह रमजान की तैयारियों पर बातचीत की। मुक़द्दस महीने रमजान का आगाज होने वाला है। माह रमजान के पेश नज़र मजहबी उमूर के सदर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हरम के इमाम और मौज़िनीन से मुलाकात की और इस दौरान मुक़द्दस महीने में नमाज की इमामत और उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई फराहम करने से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान अल सुदैस अपनी कुरानी तिलावत और इल्मी खिदमात के लिए जाने जाते हैं और वो मजहबी उमूर के सदर भी हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम दावोस में तेलंगाना राइजिंग वफ्द ने इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी के सदरनशीन एल्विन स्टूपिल से आला सतही मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़रा
श्रीधर बाबू और पी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़राअत, मौसमियाती तब्दीलियों और स्टार्ट अप इनोवेशन में जारी और मुजवज़ा इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। इस शराकत दारी के तहत इसराइल तेलंगाना के स्टार्टअप्स को एआई, हेल्थ टेक, एग्री टेक, साइबर सिक्योरिटी और एरोस्पेस के बशमूल मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन फराहम करेगा। इसराइली स्टार्टअप्स के साथ एआई पर मबनी पायलट प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। संगारेड्डी जिले के जोगीपेट में मुनक्किदा एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान खवातीन ने वजीर दामोदर राज नरसिम्हा को घेर लिया और इंद्रम्मा साड़ी लेने से इनकार कर दिया। खवातीन का कहना था कि उन्हें साड़ियां नहीं बल्कि इंतखाबात से कबल किया गया माहाना 2500 रुपये देने का वादा पूरा किया जाए। खवातीन ने वजीर से सवाल किया कि इंतखाबी वादों का क्या हुआ। उनका कहना था कि पहले 2 साड़ियां देने की बात कही गई थी, लेकिन अब सिर्फ 1 साड़ी दी जा रही है। खवातीन ने शिकायत की कि उन्हें पेंशन और गैस सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। बेगमपेट फ्लाईओवर पर एक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और ट्रैफिक को बहाल करने के इकदाम किए। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। एसआईटी की जानिब से तकरीबन 8 घंटे तवील पूछताछ के बाद साबिक वजीर व बीआरएस कायद हरीश राव मुस्कुराते हुए बाहर आए। जांच के बाद उन्होंने अपने हामियों से मुलाकात की और तेलंगाना भवन रवाना हो गए। तेलंगाना भवन पहुंचने पर बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर केटी रामाराव, बीआरएस के अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर हैदरा एवी रंगनाथ ने शहर की झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहाली के लिए फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान हुक्काम को सख्त हिदायत जारी की। दौरे के मौके पर उन्होंने झीलों में सीवरेज के गंदे पानी की आमद पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने उहदेदारों की सरजनिश करते हुए सवाल किया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की मौजूदगी के बावजूद झीलों में बगैर ट्रीट किया गया गंदा पानी क्यों दाखिल हो रहा है। रंगनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि झीलों की तरक्की का मतलब सिर्फ उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती या कॉस्मेटिक वर्क नहीं है, बल्कि उनकी असल रूह इस बात में है कि उन्हें आलूदगी से बचाया जाए। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के वद्दीपल्ली मंडल के पेपाड गांव में सीसी सड़कों के तामीराती कामों के इफ्तिताह के दौरान प्रोटोकॉल को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। इस मौके पर कांग्रेस एमपी मल्लू रवि, बीआरएस एमएलए विजय अड्डू और साबिक एमएलए संपत कुमार मौजूद थे। इफ्तिताह के दौरान रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि के नारियल फोड़ने के बाद साबिक मार्केट कमेटी सदरनशीन ने नारियल फोड़ने की कोशिश की, जिस पर बीआरएस एमएलए विजय अड्डू ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इतराज़ किया। इस बात पर तल्ख कलामी बढ़ गई और इल्ज़ाम है कि एमपी मल्लू रवि ने मुश्तइल होकर विजय अड्डू पर हमला किया। बीआरएस कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि एमपी बनने के बाद से मल्लू रवि ग्रुप सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं और नफरत को हवा दे रहे हैं। एसीबी अहदेदारों ने वरंगल के डिप्टी कलेक्टर वेंकट रेड्डी के मकानात और दीगर मकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली। वेंकट रेड्डी को गुज़िश्ता माह एक खानगी स्कूल को इजाज़त देने के अवज़ 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात में उनके पास गैर कानूनी असासों का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद मंचीनीरू में वाक़े रिहाइशगाह के बशमूल दीगर मकामात पर तलाशी ली गई। इस दौरान 30 लाख रुपये नकद रकम और अहम जायदादों से मुतालिक दस्तावेज़ात जब्त किए गए। राजमंद्री के करीब दीवन चेरू के मुकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया, जहां 3 बसें आपस में टकरा गईं। बताया जाता है कि सड़क पर अचानक एक भैंस आ जाने के बायस एक बस ने बचने की कोशिश में उसका रुख मोड़ दिया, जिसके नतीजे में पीछे आने वाली 2 बसें भी इससे टकरा गईं। इन बसों में तेलंगाना की पीएमसी मॉडल स्कूल के 109 तलबा के साथ जाने वाली बस भी शामिल है। हादसे में बस ड्राइवर्स जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर राजमंद्री के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में तमाम तलबा महफूज हैं, ताहम बाज़ तलबा मामूली तौर पर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुराने शहर में साइबर जराइम से मुताल्लिक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
जागरूक हैदराबाद सुरक्षित हैदराबाद मुहिम के तहत आवाम को ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल जराइम और एहतियाती तदाबीर के बारे में वाकिफ करवाया गया ताकि शहरी इससे महफूज रह सकें। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी दफ्तर हुमायूं नगर में GHMC अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उन्होंने आने वाले मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बल्दी सहूलतों के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और बर वक्त इक़दामात की हिदायत दी। हिंदुस्तानी निजात नासा की कलाबाज सुनीता विलियम्स ने दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कायनात और शमसी निज़ाम में इंसान की हैसियत बहुत छोटी है। सुनीता विलियम्स ने कहा कि खला से वो हमेशा अपने वालिद की जन्मभूमि यानी हिंदुस्तान और वालदा के वतन स्लोवेनिया को तलाश करती रही हैं। उन्होंने कहा कि वो इन तमाम हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा करने के लिए आई हैं जिन्होंने उनकी बहिफाजत ज़मीन पर वापसी के लिए दुआएं की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,